Hello everyone, hope all of you are doing well. Now that IPMET exam is over, the first phase of our preparation is done and now we have to gear up for the second phase of our preparation, which is the GDPI round. In this short video, we are going to discuss 5 important tips for GDPI preparation, and also there is a very important announcement that I'll be making at the end of the video. So stay till the end of the video to know about the update. Now the first tip for your interview preparation is know yourself inside and out. You should be very well prepared with your introduction, which is generally the first question that is asked. Tell me about yourself. Now this is a very important question to prepare for because this generally drives the whole interview. The points that you'll be telling about yourself to the interviewer might pick some points from that answer of yours, and the whole interview might go on the same lines. So if the answer to this question impresses the interviewer, then the whole interview will go along the lines which you want them to be, right? But if you do not answer this question very well, and if they're not interested in whatever points you make, they will ask questions from the area which they want to focus on. So it's like with this question, the interviewers generally throw the ball in your court, how you want the interview to be structured. Now you should also be knowing why do you want to do MBA, why IPM program, why not anything else, right? Where do you see yourselves in 5 to 10 years? So you should be prepared with these standard HR questions, which are very standard, which can be asked in the interview. Now it's not necessary that these questions will be asked, but in all probability, at least one of these questions will definitely be asked in the interview. Cool. Now the second, a very important point for IPM is be thorough with your academics, especially the 11th and 12th के subjects. आपने कॉमर्स लिया हो, साइंस लिया हो, कुछ भी लिया हो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज कुछ भी लिया हो, know the subjects, know your 11th and 12th subjects, which was your favorite subject. You might be asked which is your favorite subject, which is your favorite topic, and then you will be asked questions from that particular topic या फिर that particular subject. तो आपको बहुत thorough होना चाहिए. Quickly revise कर लो, whatever time you have, quickly revise through the important subjects that were there. Economics हो गया, business studies हो गया, if you took economics, या फिर आपने humanities वगैरह लिया था, तो जो important topics या subjects हैं उनका अच्छे से तैयारी कर लो. इस पार्ट से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं. LPT इज कमिंग अप विद एन इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच, जहां पर यू विल बी गेटिंग अनलिमिटेड PIs एंड ऑब्वियसली एक बार PI होगा तो यू विल गेट इंस्टेंट फीडबैक. देयर विल बी गाइडेंस फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हु हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ कैंडिडेट्स. तो ऐसे इंटरव्यूअर्स से आपका इंटरव्यू होगा और आपको उनसे फीडबैक मिलेगा, राइट? यू विल हैव एक्सटेम्पोर प्रैक्टिस एज वेल. जीके करंट अफेयर के सेशंस होंगे एंड एक्सपर्ट लेड एकेडमिक सेशंस के भी सेशंस होंगे, ठीक है? सो दिस इज एन बैच विच वी आर लॉन्चिंग फ्रॉम जून फर्स्ट वीक. द सीट्स आर फिलिंग वेरी फास्ट. देर आर ओनली लिमिटेड सीट्स. तो हरी अप इफ यू वांट योर प्रिपरेशन टू take that extra notch up. If you want to take your preparation that one notch up, then this is the best platform that you can get. Next is stay updated with current affairs. बहुत ज़रूरी है ये चीज़. आपके आसपास क्या हो रहा है? For example, Operation Sindoor is a very hot topic right now. Russia-Ukraine conflict is very hot topic. ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई. Then you have US trade deals, जो tariff वगैरह, Trump is imposing tariffs on China, India and globally on other countries. So what are the implications of that tariff? How will it affect India, or how, if not, why will it not affect India? All those things you should have a very basic idea. Obviously they do not expect you to be an expert on it, but at least जो normal newspapers में जो news आती हैं कि क्या हो रहा है, at least उतना आपको पता होना चाहिए. If you have some deep insights into it, वो बहुत अच्छा है, but they don't expect you to have deep insights into it, but they expect you to know what is happening around the globe. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है, you should know some basic facts about the city that you live in, the state that you live in, and obviously country which is India. थोड़ा basic knowledge होना चाहिए. For example, if I'm from Bhopal has a history of Nawabs, right? So what is its history? Raja Bhoj,
एंड राजा भोज की कहानी थी, हाउ मेनी लेक्स आर देयर इन भोपाल, वाई इज भोपाल दी, सो देयर इज एन हिस्ट्री वाई हाउ भोपाल बिकेम द कैपिटल सिटी। तो ये बेसिक हिस्ट्री जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। सो आई एम फ्रॉम भोपाल, आई नो ऑल दोज थिंग्स, विच एवर सिटी यू आर इन यू शुड नो अबाउट दैट। कूल। तो ये जोग्राफिक लोकेशन, जिस भी लोकेशन में आप हो उसके आसपास के एरियाज के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज यू शुड कम्युनिकेट क्लियरली। नाउ दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी वेरी गुड इन इंग्लिश, वो ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश में आपको डिसेंट तो होना चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, बट इट्स नॉट ऑल्सो नेसेसरी दैट यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट वॉट एवर इंग्लिश यू नो, थोड़ा तो पता होना ही चाहिए ऑब्वियसली। वॉट एवर यू नो यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इट वेरी क्लियरली। यू शुड नॉट गो अराउंड बीटिंग द बुश, कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो, 2 मिनट पहले कुछ पॉइंट बोले थे फिर 2 मिनट बाद उसी को ही खुद ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। अलॉन्ग विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट you should be able to communicate it very precisely. If something can be said in one line, don't go around making a paragraph out of it, ठीक है। बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करो, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब इसमें कम्युनिकेटिंग क्लियरली में एक पॉइंट का अच्छे से ध्यान रखना, दे विल बी आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सम ऑफ द आंसर्स यू माइट बी नोइंग, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आंसर्स आपको नहीं पता होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है तो बी वेरी ऑनेस्ट एंड टेल देम आई डोंट नो द आंसर। और अगर तुम्हें लगता है कि यू नो द आंसर, यू नीड सम टाइम टू स्ट्रक्चर द आंसर, पोलाइटली आस्क देम कैन आई टेक अ मिनट और टू टू थिंक अबाउट द आंसर। तो यू कैन आस्क देम सम टाइम, वो चलेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलना है, अरे ये तो मेरे को पता है, ये तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। डोंट, यू कैन sort of put forth your point. If they counter your point, think about it. Don't blatantly say कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है. If you are countering their argument, counter their argument with facts or with logic. नहीं sir, ऐसा नहीं, ऐसा होता है और this is what I know, this is what I have read. So be very clear, be very honest. Don't go around lying in the interview. It's very easy to कैच योर लाइफ, ठीक है, बहुत आसान होता है। दीज गाइज हैव बीन टेकिंग इंटरव्यू फॉर अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे नो व्हेन समवन इज लाइंग और व्हेन समवन इज टेलिंग द ट्रूथ, वो इजीली फिगर आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। एंड द लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज बी प्रिपेयर्ड फॉर वेरी रैंडम क्वेश्चंस। वेरी रैंडम क्वेश्चंस मतलब कि यू माइट बी आस्क्ड व्हाई शुड आई रिजेक्ट यू, व्हाई शुड वी रिजेक्ट यू, यू वुड हैव प्रिपेयर्ड व्हाई शुड वी एक्सेप्ट यू, इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर किया होगा, बट यू शुड हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड और यू शुड बी रेडी एट लीस्ट वाई शुड वी रिजेक्ट यू, उसका आंसर भी आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। बहुत रैंडम क्वेश्चंस भी कभी पूछ लेते हैं, राइट। व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, वेरी एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन टू यू। सो व्हाट दे वांट टू सी इज कि हाउ क्विकली कैन यू थिंक, राइट। आप इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, हाउ क्विकली डू यू थिंक, यू एनालाइज एंड यू रिस्पॉन्ड, how well do you respond to unfamiliar situations is what they want to test through these kind of questions. What if we made you the principal of your school, क्या करोगे तब, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, थोड़ा ऐसा नहीं कि मैं बच्चों की छुट्टी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऑब्वियसली डोंट गिव रैंडम आंसर्स, थिंक अबाउट इट। प्रिंसिपल बनोगे स्कूल का तो स्कूल के लिए भी सोचना है, बच्चों के लिए भी सोचना है, पेरेंट्स के लिए भी सोचना है, तो थिंक अबाउट एवरीवन and then answer the question, and मतलब think about all the aspects of the situation and then answer the question. Describe a time you handled a failure. So strength and weaknesses पे आप prepare करोगे, तो weaknesses में you prepare this question के कभी आपने failure face किया है तो what did you do in that situation. ये मत बोल देना बस ये failure था, अब आपको failure तो था but how did you overcome that failure, ठीक है। उस फेलियर को आपने कैसे हैंडल किया, वो भी आपको आंसर अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सो दीज आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चन जो वो पूछ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, वो तो कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस अ सिचुएशन वेयर दे विल आस्क यू समथिंग विच यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट, एंड यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट वेरी क्विकली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इन सिचुएशंस के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 5 वेरी क्विक टिप्स फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन।
ठीक है, सबसे पहला क्या था, HR क्वेश्चंस, नो योरसेल्फ। सेकंड वाज अकैड्स आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। थर्ड वाज करंट अफेयर्स, जीके, इन सब की तैयारी होनी चाहिए। फोर्थ वाज यू शुड बी वेरी प्रिसाइज विद योर communication, right? And the last one is you should be able to handle unfamiliar situations calmly very well. ठीक है, तो all the best your preparation. Thank you.